In the last lecture, we have seen about the internal energy. Internal energy is defined as the every substance associated with definite amount of energy. Internal energy means every substance associated with a definite amount of energy which is stored in substance, जो कि सब्सटेंस में स्टोर होती है, कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, और इसी को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी. डेफिनेशन देखो यहाँ पर ध्यान से. एवरी सब्सटेंस एसोसिएटेड विथ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच स्टोर इन अ सब्सटेंस कॉल्ड इंटरनल एनर्जी. डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1. Here U1 is the internal energy of initial state and U2 is the internal energy of final state. The internal energy, it is due to the sum of kinetic energy and the potential energy of individual particle of a substance. ये जो एनर्जी है ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों के कंबाइन होने से फॉर्म होती है. It is called internal energy. It is a state function. Internal energy is a state function because it depends upon the initial and final state of the system, and it is one of the extensive property. It is very important. Internal energy is a state function because it depends upon the initial and final state of the system, and it is one of the extensive property. ये हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देख चुके थे. आज हम पढ़ेंगे अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सबसे पहले तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. दिस लॉ based on law of conservation of energy. Following are the statements for the first law of thermodynamics. The statements are: number 1, energy neither be created nor be destroyed. First law of thermodynamics is based on the law of conservation of energy, and first statement for this law is energy neither be created nor be destroyed. Second, only one form of energy is converted into another form. One form of energy is converted into another form. यानी एक एनर्जी का फॉर्म दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होता है. Therefore, the energy of universe remains constant. Energy of universe remains constant. In this way,
the total energy of isolated system is constant. So these are the four statements for the first law of thermodynamics. So carefully see this. The energy neither be created nor be destroyed. Only one form of energy is converted into another form of energy. Therefore, energy of the universe remains constant. Therefore, total energy of isolated system is constant. So these are the different statements for the first law of thermodynamics. तो ये अलग अलग स्टेटमेंट है जो बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, और इसी से बनाया गया है द फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics. Next point is formulation of the first law of thermodynamics. यहाँ पर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का फार्मूला देखने वाले. द फार्मूलेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी हम यहाँ पर फार्मूला बनाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए. तो सबसे पहले यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे, सपोज Q हीट इज एब्जॉर्ब बाय अ सिस्टम, यानी यहाँ पर Q अमाउंट ऑफ हीट ये सिस्टम में एब्जॉर्ब हो रही है, एंड W वर्क इज डन ऑन सिस्टम, और W जो है ये वर्क डन हो रहा है ऑन सिस्टम. हीट एब्जॉर्ब हो रही है और वर्क डन हो रहा है ऑन सिस्टम. देयरफॉर द इंटरनल एनर्जी of the system increases. Therefore, internal energy of the system is increases. इसी को हम लिखेंगे फार्मूले के फॉर्म में. सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे Q heat is absorbed. So here Q have positive sign plus the work done on system. The work is done on system. It is also shown by positive sign. W is also positive, due to which the internal energy of the system is increases. Therefore, delta U is also positive. So, in this way, this is the equation or formula for the first law of thermodynamics. That is delta U is equal to Q plus W. Here, Q is heat absorbed by system, W is work done on system, and due to which the internal energy of the system it is increases. So here it is the formula for the first law of thermodynamics. So the formula for the first law of thermodynamics is delta U is equal to Q plus W. It means that increase in internal energy, the increase in internal energy is sum of heat absorbed by system and the work done on system. यानी डेल्टा यू ये हीट और वर्क का एडिशन है, एंड हियर हीट इज एब्जॉर्ब एंड द वर्क डन ऑन सिस्टम. So next point is the first law of thermodynamics for the various process. इसके पहले हमने टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस पढ़े हुए. अब वही प्रोसेसेस के लिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस तरह से चेंज होता है वो देखेंगे. तो सबसे पहले जो प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस. इस प्रोसेस में हमने पढ़ा
द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट. इसमें जो है टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है. द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. इट मीन्स delta T is equal to 0. If delta T is equal to 0, at that time delta U is equal to 0. So in first law of thermodynamics, delta U is equal to Q plus W. तो इसमें अगर डेल्टा U 0 होगा तो इक्वेशन में बाकी रहेगा Q plus W. It means that Q is equal to minus W or W is equal to minus Q. So in this way, in isothermal process, the first law of thermodynamics is change. देखो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है इसलिए डेल्टा टी इज इक्वल टू 0. उस जगह पर डेल्टा यू भी 0 होता है इसलिए डेल्टा यू इज इक्वल टू 0. इक्वेशन है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. अगर डेल्टा यू 0 होगा तो इक्वेशन में बाकी रहेगा क्यू प्लस डब्ल्यू. तो इसको हम लिख सकते हैं इधर क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू और डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू. नाउ the second process is isobaric process. In this process, the pressure of the system is remains constant. इस प्रोसेस में प्रेशर जो है ये कांस्टेंट होता है. इसका मतलब डेल्टा P इज इक्वल टू 0. इक्वेशन है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू और डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस अगर हम वर्क के जगह डालें यहाँ पर P एक्सटर्नल डेल्टा V. तो इस इक्वेशन में भी डेल्टा P नहीं है. देयरफॉर द इक्वेशन इज एज इट इज. यहाँ पर डेल्टा P 0 है. इस इक्वेशन में डेल्टा P नहीं है. P एक्सटर्नल है. P एक्सटर्नल अलग होता है और डेल्टा P अलग होता है. तो ये इक्वेशन में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे हम. इक्वेशन जो है वो एज इट इज होंगे. तो इसको बोलेंगे हम आइसोबारिक प्रोसेस. हियर द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट. द नेक्स्ट इज नंबर 3 आइसोकोरिक प्रोसेस. इन दिस प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. ये प्रोसेस में वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होता है. इसका मतलब डेल्टा V इज इक्वल टू 0. और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की इक्वेशन है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू. यहाँ पर तो हमें डेल्टा V नहीं दिख रहा, लेकिन अगर हम W की वैल्यू पुटअप करेंगे जो है P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, तो इस जगह हमें यहाँ पर डेल्टा V दिख रहा है. तो अगर डेल्टा V 0 होगा तो टोटल वर्क भी 0 होगा. सो इक्वेशन बिकम्स डेल्टा U इज इक्वल टू Q और माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस Q. सो इन दिस वे द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज चेंज फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस. द नेक्स्ट इज नंबर 4 is adiabatic process. Number 4 is adiabatic process. In this process, the heat of the system is remains constant. Means here Q is equal to 0. So equation is delta U is equal to Q plus W. If here Q is 0, the equation becomes delta U is equal to W, or it is right minus delta U is equal to minus W. So in this way, in 4 different process, the first law of thermodynamics is change. तो यहाँ पर हमने 4 अलग अलग प्रोसेस देखे जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स चेंज होती है. आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एंड द लास्ट वन इज एडियाबेटिक प्रोसेस. द नेक्स्ट पॉइंट इज एंथैल्पी. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय H. सबसे पहले हम एंथैल्पी की डेफिनेशन देखेंगे और डेफिनेशन लिखने के लिए हम यूज़ करेंगे इसका फार्मूला. तो सबसे पहले मैं इसका फार्मूला लिखती हूँ. H इज इक्वल टू U प्लस PV. H इज एंथैल्पी, U इज इंटरनल एनर्जी, एंड PV इज द प्रेशर वॉल्यूम
एनर्जी। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, एंथैल्पी is sum of internal energy. It is a sum of internal energy and pressure volume energy. देखो यहाँ पर H जो है ये दो चीज़ों का एडिशन है। एक है इसमें इंटरनल एनर्जी दैट इज U, और दूसरा है इसमें प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। सो एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। अभी इसके बाद हम शुरू करेंगे चेंज इन एंथैल्पी दैट इज डेल्टा H इज अ स्टेट फंक्शन। जैसे हमने देखा डेल्टा U भी स्टेट फंक्शन है, वैसे डेल्टा H भी स्टेट फंक्शन है। डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1, और इसमें H2 जो है इज एंथैल्पी ऑफ फाइनल स्टेट एंड H1 इज द एंथैल्पी ऑफ इनिशियल स्टेट। तो it depends upon the initial and final state, therefore it is also one of the state function. तो सबसे पहले एक इक्वेशन लिख रही मैं, H1 इज इक्वल टू U1 प्लस P1V1। इसी तरह से मैं और एक इक्वेशन बना रही हूँ, H2 इज इक्वल टू U2 प्लस P2V2। we know delta H is equal to H2 minus H1 means delta H is equal to H2 की वैल्यू यहाँ पर हम पुटअप करेंगे U2 प्लस P2V2। उसी तरह से माइनस अब हम H1 की वैल्यू पुटअप करेंगे U1 प्लस P1V1। इसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, डेल्टा H इज इक्वल टू U2 प्लस P2V2 माइनस U1 माइनस P1V1। यहाँ पर ये साइन चेंज होंगी क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन। इसको हम रीअरेंज करेंगे, डेल्टा H इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस P2V2 माइनस P1V1। U2 माइनस U1 इज नथिंग बट डेल्टा U, तो इसके जगह मैं लिखूंगी डेल्टा U, और उसके बाद यहाँ पर आएगा डेल्टा PV, यानी हम डेल्टा P को भी लगा रहे हैं और V को। बट एंथैल्पी इज स्टडीड एट अ कांस्टेंट प्रेशर, इट इज एट कांस्टेंट प्रेशर। ये जो इक्वेशन है एट कांस्टेंट प्रेशर पर बनेगी। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। कांस्टेंट प्रेशर पर हम डेल्टा जो है वो प्रेशर को नहीं लगाएंगे, सिर्फ यहाँ पर डेल्टा जो है V को लगाएंगे। देयरफॉर द इक्वेशन इज डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। यहाँ पर QP इज heat absorbed at constant pressure, it is nothing but delta H। therefore delta H के जगह पर लिखूंगी मैं QP is equal to delta U plus P delta V, and QV is heat absorbed at constant volume जो है delta U। So here it is all about the enthalpy. The next point is relationship between delta H and delta U for the chemical reaction. अभी हमने पढ़ा था the relationship between delta H and delta U, जिसमें हमने लिखा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। लेकिन अब हमें यही इक्वेशन को चेंज करना है फॉर अ केमिकल रिएक्शन। यही इक्वेशन को हम चेंज करेंगे केमिकल रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखी, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P
डेल्टा वी की जगह हम वैल्यू पुटअप करेंगे V2 माइनस V1, क्योंकि डेल्टा वी क्या होता है V2 माइनस V1. नेक्स्ट इज डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस PV2 माइनस PV1. अब मैं ब्रैकेट को ओपन करी, एक बार P से V2 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार P को V1 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस PV2 माइनस PV1. उसके बाद we know ideal gas equation, that is PV is equal to nRT. यहाँ पर V1 is the initial volume and N1 is the initial number of moles, and same equation for PV2 is equal to N2RT. Here V2 is the final volume and N2 is the number of moles of product. यहाँ पर लिखिए V1 and V2 are initial and final volume, and N1 and N2 are the number of moles of gaseous reactant and product रिस्पेक्टिवली. यहाँ पर V1 और V2 इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम है. N1 एंड N2 आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट. पहला रिएक्टेंट का N1 और N2 जो है प्रोडक्ट के लिए. सो पुट दिस वैल्यूज इन अबो इक्वेशन. यहाँ पर हम ये दोनों के वैल्यूज इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे. देयरफॉर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस PV2 के जगह मैं लिखूंगी N2RT और P1 V1 के जगह लिखूंगी N1RT. तो इस तरह से हमने PV2 एंड PV1 की वैल्यूज यहाँ पर पुटअप किए. देन डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस, अब यहाँ पर कॉमन है दोनों में RT, तो RT को हम ब्रैकेट के बाहर ले रहे हैं. ब्रैकेट में आएगा N2 माइनस N1 एंड नेक्स्ट स्टेप डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस N2 माइनस N1 इज नथिंग बट डेल्टा N और आगे आएगा RT. हियर डेल्टा N इज इक्वल टू N2 माइनस N1. हियर N2 इज the number of moles of gaseous product minus N1 means the number of moles of gaseous reactant. So delta N is the difference between the number of moles of gaseous product and the number of moles of gaseous reactant. So it is the equation which shows the relationship between delta H and delta U for the chemical reaction.